Student, welcome to all of you. This is the third chapter of your English book, and the chapter name is the Princess and the Moon. So let's see what is the story. Here is about the princess. I will climb the tree tonight when the moon gets caught in the top branches and bring it to you, said the court jester. So here is a person who is a court jester. Now what is the court jester? You know, student, in the ancient time there are so many comedian, so many jokers who used to live in the court of the king to create humor, to entertain the people who were related to the kingdom. So, like that, court jester was a person, and he is saying in this story that I will climb the tree tonight when the moon get caught in the top branches. कि आज रात को मैं क्या करूँगा, चांद को तोड़ के ले आऊँगा जब ये पेड़ों की शाखाओं में फंस जाएगा. एंड टू हुम ही वॉज सेइंग, वो किससे बोल रहा था? वो बोल रहा था राजकुमारी से. देन ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स. आफ्टर दैट ही वॉज थिंकिंग समथिंग एल्स. What is the moon made of, princess? He asked, and suddenly he put a question before the princess. और अचानक से उसने क्या किया, एक प्रश्न कर दिया राजकुमारी से. So princess tell me, princess मुझे बताओ, ये मून, ये चांद किससे बना होता है? Oh, she said, it is made of gold. Of course, silly. Now the princess answered that of course it is made of gold. बिल्कुल ये चांद ये बना होता है सोने का. How silly the question is. कितनी मूर्ख जैसी बातें हैं. The court jester went to see the royal goldsmith and asked him to make a tiny round golden moon just a little smaller than the thumbnail of a Princess Leonore. Now, the court jester went to the royal goldsmith. अब वो कहाँ जाता है? रॉयल गोल्डस्मिथ के पास. So बच्चों, गोल्डस्मिथ मीन्स यू ऑल नो डैट सुनार. तो जो कोर्ट जेस्लर होता है वो जाता है सुनार के पास एंड सेड टू हिम या ऑर्डर्ड हिम टू मेक ए टाइनी मीन्स स्मॉल राउंड गोल्डन मून. वो उसे क्या कहता है? एक छोटा सा सो स्मॉल इट इज एज स्मॉल एज दी थंबनेल ऑफ दी प्रिंसेस. मीन्स राजकुमारी के नाखून के बराबर एक छोटा सा चांद बनाने का वो आदेश देता है. एंड यू नो व्हाट इज द प्रिंसेस नेम? प्रिंसेस नेम वॉज प्रिंसेस लिनोर. सो राजकुमारी का नाम क्या रहता है? लिनोर रहता है. देन ही आस्क्ड हिम टू हैंग इट ऑन ए गोल्डन चेन सो डैट द प्रिंसेस कुड वेयर इट राउंड हर नेक. Now, the court jester also ordered the royal smith to hand the golden moon into a golden chain so that the princess can wear it around her neck so easily. What is this thing I have made? Asked the royal goldsmith when he had finished. Now, when the royal goldsmith अब वो शाही जो सुनार होता है, जब वो इस चांद को बना लेता है, when he had finally completed, he said and astonished. वह उसे देखता है और बहुत ही आश्चर्य करता है कि what is this thing, कि ये क्या चीज़, what this thing I have created, ये मैंने क्या बना दिया है. You have made the moon, said the court jester. So court jester was present there and he said, तो court jester वहाँ रहता है और वो कहता है कि आपने चांद बना दिया है. But the moon, said the royal goldsmith, is 500,000 miles away and it is made of bronze and is round like a marble. But at this, the royal goldsmith answered, but the real moon is 500,000 miles away from all of us and actually it is made of bronze. जबकि ये किससे बना हुआ है? ये ब्रॉन्ज से बना हुआ है. ब्रॉन्ज में एक्चुअली क्या होता है? तांबा. एंड इज राउंड लाइक ए मार्बल. और ये कैसा दिखता है? ये एकदम संगमरमर जैसा गोल है. दैट्स वॉट यू थिंक, सेड द कोर्ट जेस्लर. सो इस पर कोर्ट जेस्लर कहता है कि इट इज़ योर थिंकिंग, ये तुम्हारी सोच है. एज ही वेंट अवे विद द मून, जैसे ही वो उस चांद को लेकर जाता है. द कोर्ट जेस्लर टुक द मून टू द प्रिंसेस एंड शी वॉज ओवरजॉयड. नाउ द कोर्ट जेस्लर कैरिड द मून टू द प्रिंसेस एंड आफ्टर हैविंग द moon, princess was so happy that she was full of overjoyed. The next day she was well again and could get up and go out in the garden to play. Now student, as you know that the princess was not feeling well, so after getting the moon she was full of joy and now she could get up and go out in the garden to play. अब वो उठ भी सकती थी और खेलने के लिए बाहर गार्डन में भी जा सकती थी.
But the king knew that the moon would shine in the sky again that night, and if the princess should see it, she would know that the moon she put on the chain was not the real moon. Now, here is the some problem before the king. Now the king was not feeling well. अब जो राजा था उनके सामने प्रॉब्लम्स आ गई. Now he was thinking, अब वो सोच रहे थे कि द मून would shine in the sky again that night, means the next night, अगली रात द मून विल शाइन अगेन इन द स्काई, आसमान में फिर से चांद चमकेगा. एंड इफ द प्रिंसेस शुड सी इट एंड एनी हाउ इट वॉज अपीयर बिफोर द प्रिंसेस, और ये राजकुमारी के सामने पड़ गया. सी वुड नो डैट द मून सी पुट ऑन द चेन वॉज नॉट द रियल मून. तब उसे पता चल जाएगा कि जो चांद उसके गले में है दैट इज़ नॉट रियल, दैट इज़ नॉट ट्रू. सो ही सेड टू लॉर्ड चैम्बरलिन, we must keep the princess from seeing the moon tonight. Think of something. So he expected his problem. He expressed his problem to Lord Chamberlain. Chamberlain also a person, as you can see here, an official who managed the home and servant of a king, queen, a important family in the past. So he is also a employee of the king. As you can see, a high level employee who was managing all the stuff who were related to the king's kingdom. So now the king was saying that what is the problem we are going to face and we should get some solution of it. We must keep the princess from seeing that the moon tonight. Think of something. And he was saying, वह कह रहे थे कि हमें कुछ सोचना चाहिए कि हम किस तरह हम प्रिंसेस को आसमान में चांद को देखने से दूर रख सकते हैं. Lord Chamberlain tapped his forehead with his finger. We can make some dark glasses for the princess. This made the king very angry. Now Lord Chamberlain presented a solution. अब देखिए चैम्बरलिन क्या करते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं. एंड ही सेड आफ्टर टैप्ड हिज फोरहेड, अपने फोरहेड को, अपने सिर को अपने फिंगर से थपकियाँ देते हुए कि वी कैन मेक सम डार्क ग्लासेस फॉर द प्रिंसेस. एंड ही सेज, वह कहते हैं कि किंग, आई थिंक वी शुड मेक सम डार्क ग्लासेस फॉर द प्रिंसेस. हमें राजकुमारी के लिए कुछ काले चश्मे बनवा देने चाहिए. दिस मेड द किंग वेरी एंग्री. नाउ द किंग आफ्टर हियरिंग दिस बिकेम सो एंग्री. इफ शी पुट्स ऑन डार्क ग्लासेस शी वुड बम्प इनटू थिंग्स. नाउ ही वाज सेइंग, द किंग से, राजा कहते हैं कि यदि वो काले चश्मे पहन लेगी तो सी में फॉल एंड डाउन, वह किसी भी चीज़ से टकरा के गिर सकती है. एंड देन सी वुड बी इल अगेन एंड लाइक दिस सी कैन बी इल अगेन. इससे वो फिर से बीमार पड़ जाएगी. कैन दे नॉट थिंक ऑफ ए वे टू हाइड द मून डैट विल नॉट मेक द प्रिंस इल, सेड द किंग. और नाउ से इट वॉज सेड बाय द किंग. अब राजा क्या कहता है, क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता, डैट वी कैन हाइड द मून डैट विल नॉट मेक द प्रिंसेस इल. क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि हम चांद को ही छुपा दें, सो डैट द प्रिंसेस मे नॉट फॉल इल अगेन, ताकि राजकुमारी फिर से दोबारा बीमार ना हो जाए. द कोर्ट जेस्लर सेड, इफ़ योर वाइज मैन कैन नॉट हाइड द मून देन इट कैन नॉट बी हिडन. ही कंटिन्यूड. अब देखिए जो कोर्ट जेस्लर रहता है, ही इज़ आल्सो प्रेजेंटिंग सम सोल्यूशन बिफोर द किंग. वो भी राजा से कहता है कि यदि आपके बुद्धिमान व्यक्ति कैन नॉट हाइड द मून, इस चांद को छुपा नहीं सकते, देन इट कैन नॉट बी हिडन, तो ये छुप भी नहीं सकता. ही कंटिन्यूड. वह कहता गया, बट हु वुड एक्सप्लेन हाउ टू गेट द मून. लेकिन किसने, हु वुड एक्सप्लेन हाउ टू गेट द मून, लेकिन कौन बताएगा कि चांद को कैसे प्राप्त किया जा सकता है. प्रिंसेस लिनोर इज़ वाइजर देन योर वाइज मैन एंड नो मोर अबाउट द मून देन दे डू. एंड ही वॉज आल्सो सेइंग, मीन्स कोर्ट जेस्लर वॉज आल्सो सेइंग, वो ये भी कह रहा था कि महाराज प्रिंसेस लिनोर इज़ वाइजर देन यू, मेन कि राजकुमारी जो है वो आपके इन बुद्धिमान व्यक्तियों से भी ज़्यादा बुद्धिमान है. एंड नोज मोर अबाउट द मून देन दे डू, और जितना वे चांद के बारे में जानते हैं, एज मच एज द वाइज मैन नो अबाउट द मून, द किंग लिनोर इज नो मोर देन इन द कंपेरिजन ऑफ देम. So it is impossible to convince the princess.
सो आई विल आस्क हर। अच्छा, तो आई विल आस्क हर नाउ द कोर्ट जेस्लर सेड, तो मैं उनसे पूछूंगा। एंड बिफोर द किंग कुड स्टॉप हिम ही स्लिप्ड क्वाइटली आउट ऑफ द थ्रोन रूम एंड वेंट अप द वाइट मार्बल स्टेयरकेस टू प्रिंसेस लेनोर्स बेडरूम। और इन द किंग्स रूम, राजा के कमरे में क्या होता है, एंड बिफोर द किंग कुड स्टॉप हिम, इसके पहले कि राजा उसको मना करता, ही स्लिप्ड क्वाइटली आउट ऑफ द थ्रोन रूम, वो सीधे क्या होता है, राजा के कमरे से बहुत धीरे से निकल लेता है। एंड वेंट अप द वाइट मार्बल स्टेयरकेस टू प्रिंसेस लेनोर्स बेडरूम एंड ही वेंट स्ट्रेटली टू द प्रिंसेस रूम। इट वॉज situated on the staircase. The princess was in bed, but she was wide awake and was looking out of the window at the moon shining in the sky. And now, in the princess room, राजकुमारी के कमरे में, she was still watching outside of the room, means she did not sleep now. She was in her bed, but she was wide awake and was looking out of the window, and she was peeping out the window at the moon shining in the sky, and she was appearing the moon also that was shining in the sky. Shining in her hand was the moon the court jester had got for her, and the moon that was shining in her hand, या in her neck, what brought by the court jester. He was very sad and there seemed to be tears in her eyes. Means the court jester was so sad, he was so disappointed. जो court jester था उसमें वह बहुत ही दुखी था. In fact there were some tears in his eyes, उसकी आंखों में कुछ आंसू भी थे. Tell me Princess Lenore, he said sadly. Now the court jester is trying to ask to the princess, वो राजकुमारी से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि टेल मी प्रिंसेस, राजकुमारी तुम मुझे बताओ, हाउ कैन द मून बी शाइनिंग इन द स्काई व्हेन इट इज़ हैंगिंग ऑन ए गोल्डन चेन अराउंड योर नेक। तो राजकुमारी तुम मुझे बताओ, एक चांद कैसे आसमान में चमक सकता है जबकि वो तो आपके गले में एक सोने की चेन में क्या हो रहा है, चमक रहा है। मीन्स हाउ कैन ए मून बी शाइन इन द स्काई व्हेन it is hanging in a golden chain that is around your neck. The princess looked at him and laughed. Now the response was, the princess was that, अब princess का क्या response होता है, she was laughing, वो हंस रही थी, and said, this is easy silly, she said, and the answer what was given by her, जो आंसर वो देती है, it was really surprising, ये बहुत सरप्राइज करने वाला होता है। वो कहती that is so easy, ये तो बहुत आसान है। When I lose a tooth, a new one grow in its place, doesn't it? वो कहती है कि जब हमारे एक दांत टूट जाते हैं या हम कोई दांत खो देते हैं तो इसके स्थान पे क्या होता है, another tooth take the place, तो एक और दांत निकल आता है, doesn't it? क्या ऐसा नहीं होता है? And when the royal gardener cut the flowers in the garden, other flowers come to take their place, and like this, इसी तरह एज इन वी टॉक अबाउट दी फ्लावर्स, जब हम फूलों की बात करें तो जब गार्डनर होते हैं, जो माली होते हैं, वो बगीचे से फूल को तोड़ लेते हैं तो अनदर फ्लावर्स हैज़ ग्रॉन एट इट्स प्लेस। आई शुड हैव थॉट ऑफ डैट, सेड द कोर्ट जेस्लर। आप देखिए कोर्ट जेस्लर कहता है, यस इट शुड कम इन माई माइंड, ये बात मेरे दिमाग में आनी चाहिए थी। फॉर इट इज़ द सेम विद द डे लाइट, और ऐसा ही तो होता है दिन की रोशनी के साथ। एंड इट इज़ द सेम विद द मून, सेड प्रिंस लेनोर। प्रिंस लेनोर कहती है, एंड दैट इज हैपन विद दिस मून, और ऐसा ही तो हुआ है चांद के साथ। आई सपोज इट इज़ द सेम विद एवरीथिंग, मुझे लगता है कि ऐसा सबके साथ होता है। हर वॉइस बिकेम वेरी लो एंड फेडेड अवे, उसकी आवाज़ धीरे धीरे क्या हो जाती है, बहुत धीमी हो जाती है। इनफैक्ट सी वॉज स्लीपिंग, सी वॉज फेल्ट स्लीपिंग, वो एकदम नींद में आ जाती है। एंड द कोर्ट जेस्लर सा दैट सी वॉज अस्लीप, और कोर्ट जेस्लर नोटिस किया कि नाउ सी बिकेम स्लिप, वो एकदम से सो गई। जेंटली ही टक्ड इन द सीट्स अराउंड हर, एंड द कोर्ट जेस्लर जेंटली टकेड द सीट्स अराउंड हर, वो क्या करता है, उसको चादर उठा देता है। बट बिफोर ही लेफ्ट द रूम ही वेंट ओवर टू द विंडो एंड विंकेड एट द मून, लेकिन बिफोर लिविंग द रूम को छोड़ने से पहले ही वॉज लुकिंग एट द मून थ्रू द विंडो, वो क्या करता है, वो
चांद को देखता है विंडो के द्वारा। फॉर इट सीम टू द कोर्ट जेस्लर दैट द मून हैज़ विंकेड एट हिम एंड ही वॉज सपोजिंग, उसको लगता है कि द मून इज़ विंकेड एट हिम, मीन्स चांद उसको क्या कर रहा है, इशारे कर रहा है। सो स्टूडेंट, दिस इज द स्टोरी ऑफ योर lesson of English. I hope you will enjoy it, and I expected that you all will read and revise it. Thank you.